Next question. The Dolce company purchases raw material on the terms of 2/10 net 30. 2/10 net 30 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पीरियड है 30 दिन, और अगर हम लोग 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो हमको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. A review of the company's record by owner Mr. Gautam revealed that the payments are usually made 15 days after purchases are made. तो यूजुअली हम लोग 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं. When asked why the firm did not take advantage of the discount, the accountant Mr. Rohit replied that it cost only 2% for these funds, whereas the bank loan would cost the company 12%. Analyze what mistake is Rohit making. That is a question. उसके बाद बी क्वेश्चन दे रखा है, वो थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. I want you to write the answer in the chat box for A part of the question. Friends, over here रोहित का दो गलती हो रहा है. पहला गलती क्या है? पहला गलती ये है कि जब उनको पूछा गया कि हम लोग डिस्काउंट का फायदा क्यों नहीं लेते हैं, तो उनका जवाब क्या था? सर सोचो तो सही, डिस्काउंट देते हैं ना तो अपने को सिर्फ 2% का फायदा होता है. उसके सामने बैंक लोन कितना है? बैंक लोन का रेट 12% है, तो 12% का खर्चा करके 2% का फायदा थोड़ी लिया जाता है. आप भी क्या सर, ऐसा उसे जवाब दिया. सो बेसिकली से ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक कि ये जो 12% है ना वो पर एनम होता है. 12% है ना वो पर एनम होता है, और ये 2% का कैश डिस्काउंट कुछ दिन जल्दी पेमेंट करने का है. When you make early payment by a few number of days, आपको ये 2% का फायदा मिलता है. उसके सामने ये 12% का जो भी खर्चा है ना वो पर एनम होता है. ये इन दोनों में डिफरेंस है. So both of them are not directly comparable. This is the first mistake that he is committing. And the second mistake ऐसा है फ्रेंड्स, देखो हम लोग या तो 10th डे को पेमेंट करेंगे या तो हमको 30th डे को पेमेंट करना चाहिए. देखो जल्दी पेमेंट हमको तभी ही करना चाहिए जब अपने को कुछ फायदा मिल रहा है. वी अंडरस्टैंड दैट से यहां पे क्या कर रहे हैं मिस्टर रोहित, वो 15th डे को पेमेंट कर रहे हैं. नाउ सपोज की इनवॉइस अमाउंट है 1 करोड़ रुपए. वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग 15th डे को पे करेंगे या 30th डे को पे करेंगे, दोनों केस में अमाउंट ऑफ द पेमेंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ द पेमेंट 1 करोड़ होगा. In a way that say making payment on 15th day is foolishness. ये जो पैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसकी जगह उसको मुझे क्या करना चाहिए? 15 दिन के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए. When I make investment of this for 15 days, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. मुझे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कुछ रिटर्न मिलेगा. That return should be earned by the company and the payment should be made on 30th day. Making payment on 15th day is absolutely foolishness. क्या होता है कि कंपनी के पास जो बिजनेस कैश अक्रूवल होता है वो 15th डे को आ जाता है एंड ये भाई साहब 15th डे को ही पे कर देते हैं. पर 15th डे को पेमेंट करना नहीं चाहिए. अगर डिस्काउंट लेने का तारीख चला गया है then in that case we should make payment on the last day. That is what we understand. Read on answer for the question. Accountant Mr. Rohit is committing following mistakes. उसमें लिखो पहला गलती, कैश डिस्काउंट एडवांटेज
2% should not be compared with rate of interest 12%, because 2% advantage is available for making early payment for a few number of days, comma, against that rate of interest slash cost of capital is per annum rate of interest. Full stop. Next question. If the firm could not borrow from the bank and was forced to resort to use of trade credit funds, तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से द कंपनी बैंक से बोरो नहीं करता है और कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू यूज द ट्रेड क्रेडिट फंड्स. What suggestion might be made to Rohit that would reduce the annual interest cost? Identify. That is the question. I want you to write in the chat box that what have you understood from the question. Sorry, I forgot to dictate you the second mistake. Mr. Rohit is making payment on 15th day out of business cash accrual. Full stop. We understand that making payment on 15th day does not give any advantage to the company. Comma, so company should delay payment so far possible and this amount should be invested for
remaining 15 days. Full stop. 30 minus 15. Please answer me that what have you understood with the B part of the question. So friends, over here in B part of the question हम लोग ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि सपोज की कंपनी बोरो नहीं कर सकता है, यानी क्या किया, ये 12% का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से विड्रॉ कर लिया है एंड वाज फोर्स्ड टू यूज द ट्रेड क्रेडिट फंड्स। इसका मतलब ये होता है द कंपनी can make payment out of business cash accrual, comma, not before that. इसका मतलब ये है that company does not have a choice but it has to rely on the business cash accrual for the purpose of making payment to the supplier, और उनके खुद के पास ना पैसा होता है और अगर वो कहीं पे बोरो करने जाते हैं तो भी उनको पैसा मिलता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आपका सजेशन क्या है कि ये कंपनी को क्या करना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन, जिसकी वजह से एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए, और वो कितने से कितना हो जाएगा वो आप बताइए। दैट इज द क्वेश्चन। सो नटशेल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, लेट्स से देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड टू अस। पहला हमको ये पूछा है दैट से आप कंपनी को ये सिचुएशन में क्या एडवाइस करोगे। उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया है और हमको पूछा कि आपका क्या सजेशन है। फिर दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि आपका सजेशन जो है वो अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना कम हो जाएगा, आप हमको ये बताइए। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन इज देयर। अभी मैं आंसर डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यू परचेज ऑन द डे 0, यू पे ऑन डे 15। अगर आप 10th डे को पे करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, पर 10th डे को आपके पास पैसा होता ही नहीं है। 10th डे को अगर आपको पे करना है और अगर आप किसी से बोरो करने जाते हो तो कोई आपको लेंड भी करता नहीं है। सो इस दिन न तो आपके पास पैसे हैं और अगर आप बोरो करने जाते हो तो कोई आपको लेंड करता भी नहीं है। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट ऑन 10th डे। अर्लीएस्ट, जल्दी में जल्दी आप दैट इज 15th डे को पे कर सकते हो। पर अरे यार 15th डे को पे करने का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? We understand that say making payment on 15th day does not give any advantage to me. So what should I do? I should delay the payment so far possible and I should make payment on 30th day. That is what we understand. One more thing that I would like to clarify all of you. देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल नहीं है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि थियरी में भले ही थोड़े कम मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आई विल बी एबल टू कंपनसेट। मैं ऐसा सोचता हूँ पर ये मेरा सोच गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, हाँ उसमें कई बार क्या, अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन ही पता नहीं चला तो आप आंसर कहां से दे पाओगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स इंपॉर्टेंटली ओवर हियर दैट मेक श्योर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू आर एबल टू इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, because unless you have understood the question there is no point, that is there is no possibility that you will be able to give correct answer. चलो बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन का आंसर लिखो। उस पे लिखो सबसे पहले
explanation of question. This is for understanding purpose. Of course, एग्जाम में हमको ये लिखना नहीं है. It has been given that company cannot borrow funds. Full stop. उसी पे देखो आगे. The company does not have an alternative but to rely on business cash accrual for making payment to supplier. Full stop. The company can make payment earliest on 15th day, comma, for making payment to supplier. Full stop. However, in that case, there is no advantage. Full stop. So, the company should delay payment so far possible, that is till 30th day. Full stop. If payment is made on 15th day, comma, on 30th day, in both the cases, annualized interest cost will be as under. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने आंसर भी लिखवा दिया है, एंड द आंसर इज दिस मच ओनली. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. द कंपनी शुड डिले द पेमेंट सो फार पॉसिबल, दैट इज टिल 30th डे. उतना आंसर है और बाकी सब एक्सप्लेनेशन है. अभी आंसर में कंटिन्यूएशन, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है
कि आपका एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों सिचुएशन में क्या होगा। सो आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। हमको अगर हम लोग 15th डे को पे करते हैं तो क्या, और 30th डे को पे करते हैं तो क्या, वो दोनों सिचुएशन में एनुअलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। आई कितना है, 2 रुपया है, प्रिंसिपल 100 माइनस 2, आर वो बैलेंसिंग फिगर, n is 15 minus 10 upon 365। वैसा का वैसा दूसरा होगा, आई कितना है, 2 रुपए, प्रिंसिपल क्या इतना होगा 100 माइनस 2, आर कितना है वो हमको कंप्यूट करना है, n क्या होगा फ्रेंड्स 30 माइनस 10 अपॉन 365। That is the way we are required to make the computation of annualized interest cost in both the cases. Right on answer. So over here R is calculated as balancing figure 2 upon 98 into 365 upon 5 into 100. 2 into 365 into 100 upon 98 upon 5. So 148.98%. और यहाँ पे 2, that is R is equal to 2 upon 98 into 100 into 365 upon 20. %37.24%. चलो write down answer with paragraph write down. We can observe that annualized interest cost is substantially reduced, comma, by making payment on 30th day. This is what we understand.